Hello guys, so today we will derive the rate equation for the first order reaction. First order reaction means it depends on the one concentration variable. कि जी कि एक वन कंसनट्रेशन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगी, दैट इज़ नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो बाय कंसीडरिंग अ सिंपल जनरल रिएक्शन, A is reactant is converted into the product. So the rate equation for the first order reaction can be written as the decrease in rate of change of concentration of the reactant with respect to time is depends upon the concentration of the reactant and the one concentration variable. So the exponent concentration power है that will be equal to 1. So proportionality sign ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ then this equation is equal to rate of change of concentration of A with respect to time is equal to Ka1, and K is what? It is the rate constant. So if we consider for this simple reaction that in the initial time and initially the concentration of the reactant A will be equal to A and the concentration of product will be equal to 0, क्योंकि before starting the reaction साढ़े को जी सिर्फ concentration है वो only reactant दी present होएगी, product दी concentration जी हैगी वो 0 होएगी at time t is equal to 0, which is the initial time. And at the final time ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਨ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਦੈਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਏ ਦੈਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਮਾਈਨਸ x. a ਮਾਈਨਸ x ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ 50 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਗੇ 100 ਮਾਈਨਸ 50 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 50. ਇਟ ਮੀਨਸ 100 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਐਂਡ 50 ਇਜ਼ ਦ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ A ਮਾਈਨਸ x. ਸੋ एट टाइम t कंसनट्रेशन की हो जाएगी A माइनस एक्स एंड प्रोडक्ट दी हो जाएगी x के बराबर. सो द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दीज मोल कंसनट्रेशन कैन बी रिटन एज कंसनट्रेशन A दी कितनी आ जाएगी साड़ी को इक्वेशन सी कि dA अपॉन dt, तो A की जगह की आ जाएगा x. सो दिस इज इक्वल टू dx अपॉन dt एंड दिस इज इक्वल टू Ka. A जिहड़ा हैगा इट इज़ वाट? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ड्यूरिंग टाइम है. सो इसकी कंसनट्रेशन कितने बराबर आ जाएगी dx अपॉन dt इज इक्वल टू A की वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी? इट इज़ इक्वल टू A माइनस एक्स आफ्टर टाइम t. ठीक है. सो अपन ने जो रेट कॉन्स्टेंट है वो फाइंड आउट करना है. सो अपन ने की करना है बाय सैपरेटिंग द वेरिएबल्स वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. सो बाय सैपरेटिंग द वेरिएबल A माइनस एक्स जो है वो इस साइड आ जाएगा, dt जो है इस साइड चला जाएगा. इक्वेशन कैन बी रिटन एज dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt. ऑन इंटीग्रेशन both side this will be equal to integration dx upon d minus x is equal to k dt. कॉन्स्ट k ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कॉन्स्टेंट अगर ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 1 upon x dx ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ then this value will be equal to log x. so this is also same as that this formula. सो अपन ने की करना है dx upon x हैगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी log x. सो साढ़े को x की जगह तो की हैगा A माइनस एक्स. सो ये असी उदों तक इस टर्म नू इंटीग्रेट या फिर असी डिफरेंशिएट करते हैं जो तक जो x गा वो खत्म ना हो जाए. ठीक है. सो अपन ने की करना है log A माइनस एक्स आ गया, ये दोबारा तो अपन ने की करनी है डिफरेंशिएशन x की d upon dx माइनस एक्स इन दिस साइड k कॉन्स्टेंट हैगा dt की की आ जाएगी साढ़े को इतने टर्म होंगी है कि इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी इक्वल टू t. अगर ये अगे एक है सो ये वैल्यू की आ जाएगी t. अगर x है तो x स्केयर अपॉन 2 आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन फॉर्मूला. सो इस साइड साढ़े को की आ जाएगा k साडा बाहर हैगा. ठीक है. सो इतने वैल्यू की बच जाएगी 1 dt. इट मीनस इट इज़ इक्वल टू t एंड प्लस i इज़ व्हाट? इट इज़ द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. सो इन दिस साइड dx अपॉन x है dx हैगा x जो हैगा वो की कैंसल आउट हो जाएगा, dx अपॉन dx कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस आई बच जाएगा. दिस इज इक्वल टू माइनस log A माइनस x एंड दिस इज इक्वल टू kt प्लस i एंड वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट एंड दिस इक्वेशन इज इनकम्प्लीट until we are
until we didn't calculate the value of integration constant. For the calculation of this integration constant we consider कि at time t is equal to 0 x is equal to 0 because जो reaction start नहीं हुई है तो product की formation की हैगी वो 0 के बराबर होएगी. So at t is equal to 0 x is equal to 0 the above equation to become minus log a minus 0 k into 0 plus I. So I की value साढ़े को की आ जाएगी minus log a. By substituting this integration constant in this second equation and substituting in the above equation 2 we get minus log a minus x as it is आ जाएगा. इस साइड kt जिहड़ा हैगा वो as it is आ जाएगा. सो इत्थे अपना इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट करनी है. इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू माइनस लॉग a तो माइनस लॉग अपने इत्थे पुट करती एंड वी गेट लॉग वाली टर्म्स जिहड़ी उन्होंने एक साइड लै जाओ माइनस लॉग a माइनस x प्लस लॉग a इज इक्वल टू kt. इन्हों आप सिंपलीफाई करके लिख लेंगे हैं. लॉग a पॉजिटिव वाली टर्म आप अगे लिख लेंगे हैं, नैगेटिव वाली पिछे लिख लेंगे हैं. log a माइनस x इज इक्वल टू kt. सो ये जो फॉर्मूला गा log a माइनस x इट इज़ similar to the formula log m minus log n. The log m minus log n the formula जिहड़ा हुंदा that will be equal to log m upon n. And so according to this formula this equation can be written as m upon n है, this is m and this is n, and log m upon n means a upon a minus x is equal to kt. So आप k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. k आप इस साइड ले लेंगे हैं, बाकी t जिहड़ा हैगा इधर चला जाएगा 1 upon t log a minus x. अपन इस log नू log ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਬਾਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਿਸ log ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਵਿਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਟਰਮ ਬਾਈ k ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2.303. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ log ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 2.303 ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ t log a upon a minus x. From this equation, this is the rate equation for the first order reaction. This is the rate constant for the first order reaction. By using this equation we can easily calculate the rate for the first order reaction. And from this equation we by plotting the graph, from this equation by plotting the graph we get the equation like, and the graph will be equal to graph जिहड़ा हैगा साडे को किस तरीके दा बनेगा. From this equation rearrange this equation kt अपॉन 2.303 log बाई टर्म में इस साइड रख ली क्योंकि अपने ग्राफ प्लॉट करना है. सो ग्राफ प्लॉट से सानू पता चलेगा कि किस तरीके का ग्राफ जिहड़ा हैगा वो बनेगा. सो kt अपॉन 2.303 साडे कोल हैगा log m अपॉन n. log m अपॉन n किहदे बराबर हो जाएगा log m माइनस log n. ठीक है. सो ये टर्म log a वाली जी हैगी असी उन्होंने इस साइड ले आते हैं प्लस log a के बराबर हो गई है. ठीक है. हुण इस टर्म के अगे माइनस सीगा, जो असी माइनस आई देना इन्होंने पूरे रिप्लेस करोगे तो माइनस बन जाएगा. a वाली माइनस वाली टर्म अगर इक्वल टू दिस साइड आती तो प्लस की बन जाएगी, तो ये वाली वैल्यू भी प्लस की रहेगी. सो ये जी इक्वेशन हैगी रिजेंबल करती है y इज इक्वल टू mx प्लस c. दिस इक्वेशन विल बी कंसीडर एज y एंड दिस इज द कॉन्स्टेंट and this is mx. So ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ y ਦਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲੋਟ ਕਰਾਂਗੇ versus x then we get the graph like this straight line in the downward direction. क्योंकि जी कंसनट्रेशन हैगी वो विद रिस्पैक्ट टू टाइम की हो रही है डिक्रीज हो रही है. ठीक है. सो अपन जो ग्राफ प्लॉट करना है साढ़े को जी टर्म हैगी m की हैगा m इज इक्वल टू माइनस आप कंसीडर करनी है ना टर्म आप y का ग्राफ प्लॉट करना है. सो y वर्सिस अपन जो x लेना है. सो ये जी इक्वेशन हैगी m की इक्वेशन जी कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी माइनस k अपॉन 2.303 एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज द स्लोप. ठीक है. स्लोप हो जाएगी और इस साइड जी कॉन्स्टेंट टर्म है इट इज़ नोन एज द इंटरसेप्ट log a और जो y है अपन y वाली जी टर्म है असी उन्होंने y एक्सिस से कंसीडर करते हैं. जी x वाली टर्म है दिस इज x उन्होंने असी x एक्सिस से कंसीडर करते हैं. साढ़े को x एक्सिस होंगे ना x y माइनस एक्स तो माइनस वाई. जी वाई वाली साइड अपने टर्म ली उन्होंने वाई वाली साइड लेना है, एक्स वाली असी एक्स वाई साइड लेना है. तो वाई की वाली साइड है log a माइनस एक्स तो अपन इतने log a माइनस एक्स लेना है. एक्स वाली साइड की है साढ़े को टाइम है सो इस साइड में टाइम लेना है. सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज गोन डिक्रीज व्हेन द concentration of the product will be formed. So this is all about the first order reaction. If you like my video then please subscribe my